कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया कि उड़ रही है बेधड़क सी यादियां। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया कि उड़ रही है बेधड़क सी यादियां। Hi everyone, welcome back to my channel Khargi Kaur, and today I have come to my sister's school to watch her annual function. And in the video I just showed you, in that my sister is in the center who's wearing the golden jacket, and she also choreographed the song. So I'll see you there. And it's a musical drama, so I hope you enjoy the show. Delhi Public School Vasant Kunj proudly welcomes this August gathering to its annual day celebrations, Yug Drishta Bharat, Pragya Se Pragati Tak, commemorating the timeless legacy of India's splendor from the dawn of civilization to the modern world. We commence this ceremony with a divine ode to knowledge and wisdom. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। This token of our gratitude. It is our proud privilege to welcome our special guests, Dr. Arun Bhardwaj Sir, Scientist, Department of Space, Indian Space Research Organization, and Shri Girendra Pratap Singh Sir, former ISRO scientist. We are honored to welcome respected Shri Ravi Veera Gupta Sir, Chairman, Managing Committee, Delhi Public School Vasant Kunj, and Srimati Manju Gupta Ma'am. जो मेरे
Good morning, everyone. It's my privilege and pleasure to welcome you all to the Annual Day Celebrations 2026 of TPS Vasant Kunj. Rabindranath Tagore aptly said, "The highest education is that which makes our life in harmony with existence." And this harmony is what TPS Vasant Kunj seeks to nurture. I extend a warm welcome to Madhu Shunglu ma'am. Ma'am, we are delighted to have you with us. You have added grace to our celebrations. I'm delighted to welcome our special guest from ISRO, Dr. Arun Bharadwaj sir, and another ex-ISRO scientist is also with us, a distinguished scientist and a part of India's remarkable journey in space and scientific achievement. Sir, a very warm welcome to you. And especially your presence is meaningful today as we celebrate a Bharat that has moved from the wisdom of its ancient civilizations. Send a warm welcome to Shri Ravi Veera Gupta sir, Chairman, Managing Committee, TPS Vasant Kunj. Sir has always been a guiding light for us. And a very loving welcome to Manju ma'am. Ma'am, we are delighted to have you with us and grateful that you are here. You have joined us on this special occasion. A very warm welcome to Namita Pradhan ma'am, Honorary Treasurer, the DPS Society, Kaushik Datta sir, Vice Chairman, Managing Committee, DPS Vasant Kunj, Bindu Sehgal ma'am is here, former Director, DPS Vasant Kunj. We have amongst us Shri Yuvraj Malik sir, Director, National Book of Trust. Dinesh sir is also here. So we are honored with your presence and we deeply appreciate that you take out your time. A very warm welcome to Sakshi ma'am and the principals of DPS schools who have taken out their time from their busy schedule. DPS Vasant Kunj stood first in the All India Inter-DPS Tennis Championship and at the zonal level football tournament boys at Greater Noida. And we also won the overall winner in the debate segment in Inter-DPS National Literary Festival. Once again, a very warm welcome to you all in the Annual Day celebrations. Thank you. ज्ञान ने मानवता को दिशा दी, जहां नीति ने राष्ट्र का स्वरूप गढ़ा, जहां संस्कृति ने सागरों को पार किया और जहां विज्ञान ने आकाश को भी अपनी सीमा मानने से इनकार कर दिया। समय के द्वार खुलने वाले हैं। आइए उस भारत से मिलिए जो था, जो है और जो विश्व का भविष्य बनने की ओर अग्रसर है। Ladies and gentlemen, welcome to the World Civilization Council 2026. Today, humanity stands at a historic crossroads, and we must all reflect and decide who will inspire the next century. This is not merely a conference on technology. Today, nations have gathered to present their contributions to humanity. Now, I invite the representatives from each country present here to share their views. We led the AI revolution and digital transformation. My country's modern industry changed the world.
Democracy, liberty, and human rights are our proud legacy. Engineering excellence and innovation define our nation's identity. Namaskar. In response to your question, I would like to show you all a short video clip. And now our final story. What comes to your head when you hear plastic surgery? Modern operating theaters, cutting-edge technology, and cosmetic enhancement. A magnificent bronze statue of Maharishi Sushruta, widely regarded as the father of surgery, has been unveiled at the Royal College of Surgeons in Edinburgh, in Scotland. Believed to have lived around 600 BCE in the ancient city of Kashi, which is modern-day Varanasi. History deserves respect, but the future belongs to those who shape the present. Very well said. But future also stands on foundations laid in the past. Imagine a world where some of India's greatest contributions never existed. What? What do you mean by that? Today, the world's most advanced AI system will perform a simulation never attempted before. Cam activated. मैं समय हूं, मैं किसी राष्ट्र का नहीं, मानवता का साक्षी हूं। आइए एक संभावना की परीक्षा करें। Simulation complete. स्वागत है उस दुनिया में जहां भारत के योगदानों को इतिहास से भुला दिया गया। No zero. No decimal system. No Aryabhatta. No Sushruta. No yoga. No Ayurveda. No Nalanda. No Panini. No chess. Mathematics incomplete. Astronomy delayed. Medicine altered. Languages fragmented. One civilization cannot change so much. We never realized how interconnected human knowledge truly is. That is precisely the point. Civilizations do not grow in isolation. Human progress is a shared journey. Ignore one, and the entire system collapses. So let us not debate history. Let us witness it. Maya tamso ma jyotirgamaya mrityor ma amritam gamaya. जहां सिंधु की लहरों ने सभ्यता का प्रथम प्रभात संवारा, जहां श्रम, शिल्प और अनुशासन ने जीवन को निखारा, जहां ईंटों से केवल नगर नहीं संस्कृति का स्वप्न सजा, जहां हर आंगन से ज्ञान और सभ्यता का दीप जला, वहीं अंकुरित हुई वह चेतना जिसने युगों का पथ आलोकित किया, वहीं प्रवाहित हुई वह ज्ञान धारा जिसने भारत का मस्तक ऊंचा किया। स्वागत है मित्रों, सिंधु नदी की धरती पर आपका स्वागत है। कैसी रही आपकी समुद्री यात्रा? लहरें ऊंची थी, पर आपके नगर की समृद्धि देखने की उत्सुकता उससे भी ज्यादा ऊंची थी। हमारे बंदरगाह दूर देशों को जोड़ते हैं। यहाँ से
सूती वस्त्र, मनके और मसाले जाते हैं और आपके नगरों से तांबा और बहुमूल्य धातुएं आती हैं। सच कहूं, हमारे यहाँ लोग सिंधु की मोहर देखकर ही सौदा तय कर लेते हैं। क्या अद्भुत व्यवस्था है! चौड़ी सड़कें, साफ नालियां, जिससे पूरा नगर किसी एक योजना से बना हो। धन्यवाद पथिक, क्योंकि एक योजनाकार के रूप में मेरा मानना है कि सभ्यताएं महलों और नगरों से नहीं बनती, उनकी पहचान उनके अनुशासन से होती है। देखिए सौदागर, ये मनके हर एक समान आकार में है। किसी भी मनके में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। यहाँ के कारीगरों के हाथों में कोई विज्ञान बसता है। अब समझ आया कि समुद्र पार तक सिंधु सभ्यता की इतनी प्रशंसा क्यों होती है। मुट्ठी भर मन के ले ही लेता हूं। छाया और जन मन ने दुख का विष पाया, तब सुश्रुत बन आशा दीप उतर आए, जीवन पथ पर नव प्रकाश बिखराए। सुश्रुत के कर कमलों से शल्य चिकित्सा जीवन का वरदान बनी, पीड़ा से आकुल मानव को नव आशा की पहचान मिली। आप शल्य चिकित्सा से पहले इतना अभ्यास क्यों कराते हैं? क्योंकि शल्य उपकरण हाथ में लेना सरल है, पर किसी की पीड़ा को अपने हृदय में महसूस करना कठिन। जिस वैद्य के हाथ स्थिर हो पर मन संवेदनहीन, वह जन की पीड़ा का उपचार नहीं बल्कि उसका उपहास करेगा। आचार्य, क्या वैद्य मृत्यु को हरा सकता है? नहीं, मृत्यु पर विजय केवल काल की है, पर एक वैद्य पीड़ा को आशा में बदल सकता है और कई बार वही सबसे बड़ी विजय होती है। काल चक्र आगे बढ़ा और उस ज्ञान धारा को एक ऋषि का स्पर्श मिला। महर्षि पाणिनि के रूप में विश्व को भाषा का अमर सूर्य मिला। शब्दों को शास्त्र बनाया, ध्वनि को अनुशासन का मान दिया, ज्ञान की हर अभिव्यक्ति को नव जीवन का वरदान दिया। अष्टाध्यायी के अमर सूत्र आज भी विश्व को राह दिखाते हैं। भाषा विज्ञान में पाणिनि प्रथम आचार्य कहलाते हैं।
गण यमगणनं झभै घटघश जवगडदश खप छठ थ चट तव कपै शशसर हल नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नव पंचवारम। केवल विद्या केवल धन से राष्ट्र सदा सशक्त न होता। रक्षा नीति दूरदृष्टि में उसका गौरव स्थिर न होता। सिंधु की लहरों से निकली जो संस्कृति की अमर कहानी, पाणिनि की वाणी से होकर अब वह पहुंची मगध की राजधानी। अखंड भारत का स्वप्न जिसने जगाया था, चणक पुत्र वह चाणक्य कहलाया था। महाराज की जय हो। सीमा पर शत्रु की सेना निरंतर बढ़ रही है। अब युद्ध ही एकमात्र मार्ग प्रतीत होता है। यदि युद्ध अपरिहार्य है तो मगध पीछे हटना नहीं जानता। सेनापति रणभेरी बजा दो। रुकिए सम्राट, रणभूमि में उतरने से पहले यह विचार कीजिए कि युद्ध किसके लिए लड़ा जा रहा है, विजय के लिए या राष्ट्र के लिए? आचार्य, क्या दोनों अलग हैं? हाँ सम्राट, जो राजा विजय चाहता है वह मात्र साम्राज्य बनाता है, परंतु जो राजा राष्ट्र चाहता है वह युग बनाता है। किंतु आचार्य, शत्रु द्वार पर खड़ा है। ऐसे समय में शस्त्र उठाना ही नीति है। नहीं चंद्रगुप्त, नीति कहती है युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए, प्रथम नहीं। बुद्धिमान राजा पहले साम से समझाता है, फिर ताम से संतुलन बनाता है, आवश्यक हो तो भेद से संकट को विभाजित करता है, और जब सभी मार्ग समाप्त हो जाएं, तभी दंड का प्रयोग करता है। यदि संवाद से सब कुछ संभव है तो सेना की क्या आवश्यकता है आचार्य? सेना राष्ट्र का बाहुबल है चंद्रगुप्त, परंतु राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल युद्ध लड़ने में नहीं, अपितु अनावश्यक युद्ध को रोकने के सामर्थ्य में निहित होती है। ध्यान रहे, शांति दुर्बलों का विकल्प नहीं, शक्तिशालियों का संयम है। तब राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? न सेना, न स्वर्ण, न विशाल महल। राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी जागृत प्रजा। जिस राष्ट्र के नागरिक अपने स्वार्थ को राष्ट्र से बड़ा मान ले, उसे किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं बिखर जाता है। और जिस राष्ट्र के नागरिक राष्ट्र को स्वयं से ऊपर रख दे, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तब हमारा कर्तव्य क्या है आचार्य? राष्ट्र की आराधना। हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन। हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन।
अर्थशास्त्र की नीति जान चुका इंसान, अब समझने को चला ब्रह्मांड महान। सभ्यता जो राजनीति समझाती थी, अब वही तारों की गति पढ़ पाती थी। भारत की इस पुण्य भूमि ने जन्म दिया उस महाज्ञानी को, जाना जिसने संख्याओं में छिपी ब्रह्मांड की कहानी को। शून्य में जिसने अनंत के दर्शन पाए, महान गणितज्ञ और खगोलविद, वह महर्षि आर्यभट्ट कहलाए। गुरुदेव, क्या आपकी सबसे बड़ी खोज केवल शून्य है? नहीं वत्स, मैंने केवल शून्य नहीं दिया, संख्याओं को अंतहीन शक्ति दी, गणित को नई दृष्टि दी, आकाश के रहस्यों को तर्क से पढ़ना सिखाया। मेरी यह खोज आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान का वट वृक्ष बनेगी। ज्ञान जहां आराध्य बना था, सत्य जहां आधार बना था, जहां विनय था प्रथम प्रवेश, चरित्र जहां श्रृंगार बना था, जहां वंश नहीं योग्यता का परिचय चलता था। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, भारत की आत्मा का गौरव था। रुक जाओ, ये किसी राज्य का नहीं, ज्ञान साम्राज्य का प्रवेश द्वार है। जो यहां आता है वह अपना परिचय केवल नाम से नहीं, अपने उद्देश्य से देता है। बताओ, तुम कौन हो? मैं श्वेन, मैं केवल ग्रंथ पढ़ने नहीं, ज्ञान को अपने देश तक पहुंचाने आया हूं। मैं तेंजिन, मैं सत्य की खोज में आया हूँ, क्योंकि सुना है नालंदा में केवल उत्तर नहीं मिलता, सोचने की दृष्टि भी मिलती है। मैं ह्योन, मैं जानना चाहता हूँ कैसे ज्ञान मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है और समाज को समृद्ध। मैं आर्य, भारत भूमि का शिष्य, मैं विद्या लेने नहीं, विद्या के योग्य बनने आया हूँ। उत्तम, तुमने अपना परिचय भी दिया और अपना अभिप्राय भी, किंतु नालंदा केवल अभिलाषा से नहीं मिलता। यहाँ प्रवेश उसी को मिलता है जो नालंदा के योग्य हो। अब मैं नहीं, तुम्हारे उत्तर बताएंगे। क्या तुम इस ज्ञान परंपरा के अधिकारी हो? बताओ, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। अज्ञानी सीख सकता है, अहंकारी नहीं। यदि तुम्हारा मत गुरु से भिन्न हो जाए तो? मैं विनम्रता से प्रश्न करूंगा, क्योंकि यहाँ वाद विवाद का उद्देश्य व्यक्ति को हराना नहीं, सत्य को पाना है। यदि शास्त्रार्थ में तुम पराजित हो जाओ तो मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि वहां मेरी नहीं, मेरे अज्ञान की पराजय होगी। विद्या का उद्देश्य क्या है? केवल जीविका नहीं, जीवन। केवल सफलता नहीं, सेवा। केवल स्वयं का उत्थान नहीं, समस्त मानवता का कल्याण। वत्स, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम नालंदा में मात्र ज्ञान प्राप्त करने नहीं, अपितु उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने आए हो। प्रवेश करो।
केवल जल राशि नहीं, सभ्यताओं का सेतु महान। जो इसकी भाषा जान गया उसका जग करता सम्मान। चोलों के जहाज लहरों पर भारत का गौरव लेकर चलते थे। व्यापार के संग संस्कृति और विश्वास के दीप भी जलते थे। उधर बृहदीश्वर का शिखर गगन से कर रहा था संवाद। पत्थर पत्थर भारत की शिल्प कला का गढ़ रहा था इतिहास। महाराज युवराज राजेंद्र चोल विजयी होकर लौट रहे हैं। सुदूर दक्षिण तक आज चोल ध्वज सम्मान के साथ लहरा रहा है। समुद्र केवल जल राशि नहीं मंत्री, वह सभ्यताओं को जोड़ने वाला मार्ग है। जो समुद्र को समझ लेता है वही विश्व से संवाद करना सीखता है। महाराज बृहदेश्वर मंदिर पूर्ण हुआ। यह केवल मंदिर नहीं, चोल सामर्थ्य का शाश्वत प्रतीक है। आज चोल साम्राज्य दो महान विजयों का साक्षी है। एक जिसने पत्थरों से आकाश को छू लिया, दूसरी जिसने सागरों को अपना मार्ग बना लिया। तलवार है जिसने समुद्र को भी चोल साम्राज्य के चरणों में झुका दिया। समुद्र तलवार से नहीं झुकता, उसके लिए लहरों की भाषा पढ़नी होती है, पवन की दिशा समझनी होती है, तारों से मार्ग लेना होता है। सागर विजय केवल वीरता का नहीं, विज्ञान, गणना और दूरदृष्टि का परिणाम है। सही कहा पुत्र। समय का चक्र आगे बढ़ा और पत्थरों ने इतिहास की धड़कनों को आकार देना शुरू किया। लाल किला, फतेहपुर सीकरी और कुतुब मीनार ये केवल स्मारक नहीं, भारत की बहुरंगी संस्कृति, अद्वितीय शिल्प और अमर विरासत के जीवंत हस्ताक्षर बन गए। युग बदले, प्रश्न बदले, पर खोज की अग्नि बुझी नहीं।
मानव की दृष्टि धरती तक सीमित कभी रही नहीं। उसी ज्योति ने एक दिन नभ से संवाद रचाया और जय सिंह ने धरती पर वेदशालाओं का भवन बनवाया। महाराज, पूरा दरबार सोचता है कि आप आधी रात को किसी गुप्त युद्ध की योजना बनाते हैं, पर आप तो तारों से बात कर रहे हैं। युद्ध सीमाएं बचाता है रानी, पर ज्ञान सभ्यताएं बचाता है। आज जो राष्ट्र आकाश को समझेगा वही समय को दिशा देगा, और मैं चाहता हूं कि भारत आकाश को दूसरों की आंखों से नहीं, अपनी दृष्टि से पढ़े। यही इन वेदशालाओं के निर्माण का उद्देश्य है। यदि आने वाला युग इन वेदशालाओं को केवल पत्थरों का ढांचा समझे तो? संभव है रानी कि लोग इन वेदशालाओं को पत्थरों का ढांचा कहेंगे, पर मैं जानता हूं ये भारत की जिज्ञासा के स्मारक हैं। Historical simulation complete. Knowledge timeline uploaded. Civilizational database synchronized. Ladies and gentlemen, you have just traveled across 5,000 years from the streets of the Indus Valley to the observatories of Maharaja Savai Jai Singh. What you witnessed was not a collection of isolated achievements. It was one continuous journey of knowledge. We have seen your history, your universities, your mathematicians, your surgeons, your astronomers. But history alone does not build the future. The real question is, what is India today? Every nation celebrates its past. What makes India different? Today the world is driven by technology. Artificial intelligence, quantum computing, space exploration, green energy. Where does India stand? इतिहास केवल गौरव का विषय नहीं होता, इतिहास पर भविष्य की जिम्मेदारी भी होती है। The world often asks, what happened to India after Nalanda? What happened after centuries of invasions and the colonial rule? The answer is simple. भारत रुका नहीं, समय बदला, साधन बदले, परंतु उद्देश्य वही रहा, मानव का कल्याण। Let us now move ahead and witness the India that rose from its past, not merely to reclaim its glory, but to redefine the future. वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद स्वतंत्रता मिली, पर हाथों में केवल तिरंगा नहीं था, भूख भी थी, बंटवारे के घाव भी थे, टूटी अर्थव्यवस्था, बिखरे उद्योग और करोड़ों उम्मीदों का भार भी था। तब भारत ने निर्णय लिया, अब इतिहास नहीं, भविष्य लिखा जाएगा। नदियों को बांधा गया, खेतों को सींचा गया, अंधेरे गांव में पहली बार रोशनी पहुंची, मिट्टी से राष्ट्र उठ रहा था, राजनीतिक स्वतंत्रता मिल चुकी थी,
अब वैज्ञानिक स्वतंत्रता की बारी थी। तब एक दूरदृष्टा ने भविष्य का दीप जलाया। नव भारत का वैज्ञानिक युग डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयास से आया। Dr. Baba, the nation is still battling poverty and recovering from war. Is this really the right time for a nuclear program? Precisely, Mr. Veera. If we do not prepare today, history may repeat itself tomorrow. But the world may ridicule us. Our friends may not approve. कोई बात नहीं, Mr. Veera. History has a strange habit. The world first laughs at India and then learns from her. But won't nuclear capability disturb the balance of power in South Asia? No, sir. परमाणु शक्ति युद्ध का निमंत्रण नहीं है. Nuclear capability is a deterrence. Its purpose is not to wage war, but to ensure that war never becomes necessary. And do we have the resources for such a vision? Resources are important, Mr. Veera, but nations are built on resolve. सामर्थ्य संसाधनों से नहीं, संकल्प से जन्म लेता है. And the day India becomes self-reliant in science and energy, our freedom will truly be complete. क्रांति ने अन्न दिया, श्वेत क्रांति ने दिया समृद्धि का मान। अब देश को चाहिए था आकाश जितना विस्तृत विज्ञान। धरती की सीमाएं लांघ भारत ने नभ को पुकारा। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष युग का स्वप्न संवारा। Dr. Sarabhai, is this really where India's space journey begins? Every great journey begins with the courage to take the first step. Other nations launch missiles. India launches a sounding rocket. Every nation writes its own story. Ours will not begin with weapons. It will begin with knowledge. And where will this path lead? To satellites that educate our children, guide our farmers, warn our fishermen, and connect every corner of India. Sir, one successful launch cannot change the nation. No, but it can change what a nation believes is possible. Sir, I believe the day is not far when India will reach beyond the skies and inspire the world with its achievements in space. And that day, Kalam, the world will know that India did not merely reach for the stars, it created its own place among them. के फिर दीप जले, नव भारत ने ली नई उड़ान। IIT ने नवाचार गढ़ा, IIM ने गढ़ा नेतृत्व महान। एक और एम्स में विज्ञान को करुणा का स्पंदन मिल रहा था, दूसरी ओर समय स्वयं इतिहास का नया अध्याय लिख रहा था।
पोखरण की रेत पर भारत केवल शक्ति नहीं, अपने स्वाभिमान का भविष्य गढ़ रहा था। Sir, sanctions are being threatened. Balance is not disturbed when the powerful possess strength. India is against none, but committed to its own security. चला चला अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम। Sir, the American satellites are constantly monitoring us. If they become even slightly suspicious, the entire operation could be halted. Then we shall work through the night, as silently as the desert itself. Officer, history is never written by noise. It is written by vision, courage, and perseverance. Sir, the test range is secure. All systems are ready. All systems are green. Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. Thank you very much indeed. पोखरण ने भारत का सामर्थ्य जग को दिखलाया, फिर विकास ने हर पथ पर अपना दीप जलाया। जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से भारत का गौरव गाया, तब हर भारतीय ने नभ को अपना स्वप्न बनाया। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? प्रकाश के चेक कर सकता हूँ सारे जहां से अच्छा। चंद्रयान 1 ने चंद्रधरा पर जल का प्रथम प्रमाण दिया। भारत के विज्ञान को विश्व ने नव सम्मान दिया। रेल, मेट्रो और राजमार्गों की गति ने बदली हर पहचान। एक सूत्र में बंधकर आगे बढ़ता रहा हिंदुस्तान। फिर मंगलयान ने प्रथम प्रयास में इतिहास नया रच डाला। मंगल की कक्षा में भारत का स्वर्णिम परचम फहरा डाला। Mission status. All systems are green. Telemetry normal. Navigation locked. Mars orbiter is on course. This is not just another mission. This is the dream of 1.3 billion Indians taking flight. Every calculation, every heartbeat, every second has brought us
to this moment. Today, history is watching us. Orbit insertion begins in 60 seconds. Signal received. Signal received. Signal received. Telemetry confirmed. Mars orbit achieved. मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। Congratulations, we have proved that great dreams do not depend on great resources. They depend on great minds, unwavering determination, and the courage to believe. युग बदलते गए, चुनौतियां बदलती गई, पर भारत का उत्तर नहीं बदला। ज्ञान, सेवा, नवाचार, इन तीन दीपों की ज्योति लेकर नव संकल्पों ने भारत का स्वर्णिम भविष्य निर्मित किया। डिजिटल भारत, स्टार्टअप और यूपीआई ने विकास का नया इतिहास रच दिया। पर तभी समय ने एक कठिन परीक्षा ली, जब कोरोना की वैश्विक महामारी ने मानवता को चुनौती दी। भारत ने फिर विज्ञान, सेवा और संस्कार का परिचय दिया। वैक्सीन, उपचार और सहयोग से विश्व को नया संबल दिया। मानवता की रक्षा कर भारत ने फिर दृष्टि उठाई। जहां क्षितिज भी रुक जाता है, वहां तिरंगे ने राह बनाई। नभ ने नित शीश झुकाया, मंगल ने गाया जयगान। ज्ञान ज्योति का जय ध्वज लेकर बढ़ा अमर भारत अभियान। चंद्रयान 2 ने दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने का साहस दिखाया। क्षण भर को चंद्र पथ पर आशा का दीप डगमगाया। पर चंद्रयान 3 का स्वर्णिम प्रभात उसी संघर्ष से आया। शुभ नाम, शुभ गुण, शुभ्र चांद सी शान, नभ के नील गगन में शुभांशु शुक्ला लिख आए नव भारत की पहचान। स्पेस से आज का भारत महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। अब गगनयान के संग मानव अंतरिक्ष की ओर बढ़ेगा। भारत का तिरंगा तारों के बीच नए इतिहास गढ़ेगा। Giant step. ISRO proudly announces Gaganyaan, India's first human space flight mission. Sir, after the moon and Mars, why send Indians into space? Because great nations do not merely explore space, they prepare their people to lead it. Chandrayaan taught us to reach, Gaganyaan will teach us to soar. India is real, the India of Takshashila or technology, the India of philosophy or artificial intelligence, the India of yoga or quantum computing, the India of the Vedas or the India of vaccines. Why must you choose between past and future? India never did. Our roots became our wings. The civilization that searched for truth in the Upanishads now searches for answers in laboratories. The hands that once folded in prayer now build satellites.
The nation that gave the world Vasudhaiva Kutumbakam also gave it unprecedented digital infrastructure and hope. Because in India, science and spirituality don't stand apart. They walk together. On this historic occasion, as we conclude the World Civilization Council 2026, we do not merely acknowledge Bharat's contribution to civilization. We acknowledge that the story of human progress is incomplete without it. कहते हैं दिल एक ही धड़कन सुनता है, पर भारत की मिट्टी में तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं। एक हाथ में मिट्टी के दिए की गर्माहट है, दूसरे हाथ में कल के सपनों की चमक है। एक ही आत्मा की दो हथेलियां हैं जो जोड़ती हैं परंपरा को प्रगति से। गांव की चौपाल में अब वाईफाई की गूंज है और खेतों की मिट्टी में अब सैटेलाइट की धड़कन भी है। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया कि उड़ रही है बेधड़क सी यादियां। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया कि उड़ रही है बेधड़क सी यादियां। तपते थे रस्ते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। आएंगी सदियां, जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निशान। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है नया, मंजर
So guys, I hope you liked the video, and bye, and subscribe to my channel and hit the bell button. Bye.